یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ سلطان ایک بار پھر مارک کے سامنے موجود تھا۔ دونوں اسی پرانی فیکٹری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مارک کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے اچانک یوں بلائے جانے پر وہ پریشان ہو گیا ہو۔ میں جانتا ہوں مارک، یوں بلانا مناسب نہیں تھا، لیکن یہ معاملہ ذاتی ہے، اس لیے تمہیں تکلیف دی۔ سلطان مارک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن مارک خاموش رہا۔ وہ پاکستانی لڑکی، وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے مارک، وہ میری محبت ہے۔ اور اس مرتبہ دشمن نے بہت اوچھا وار کیا ہے۔ جب ان سے میرا کچھ بگاڑا نہ جا سکا، تو انہوں نے اس لڑکی کو اٹھا لیا، جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ باقی میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنا راستہ کیسے بنانا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن مارک کی خاموشی اور بے چینی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ایسی کوئی اطلاع نہیں دینا چاہتا جو خود اس کے لیے خطرہ بنے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ میں خود ہی کر لوں گا، اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ مارک نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ کہا، میں نے بھی ایک مرتبہ محبت کی تھی، لیکن وہ مجھے مل نہ سکی۔ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے دوست، اگر وہ تمہاری قسمت میں لکھی ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ رکا اور پیچھے مڑ کر مارک کو دیکھنے لگا۔ مارک چند لمحے خاموش رہا اور پھر دھیرے سے بولا، میں اپنی محبت کے ساتھ اکثر ہرن بے کلاک ٹاور جاتا تھا۔ وہاں موجود ہرن بے پینٹ ہاؤس سے سمندر کا منظر بڑا دلکش لگتا تھا۔ ہم دونوں وہاں گھنٹوں کھڑے سمندر کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے مارک کی نظریں دور خلا میں اٹک گئیں۔ پھر اچانک اس نے اپنی آنکھ دبائی، جیسے اپنی ہی بات کی نفی کر رہا ہو۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں دبا ہوا کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور مسکرا کر بولا، بہت شکریہ دوست، میں فارغ ہو کر ضرور وہاں جاؤں گا۔ آخر مجھے بھی شوق ہے وہ جگہ دیکھنے کا جہاں تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ مارک چپ چاپ وہاں سے نکل گیا اور سلطان بھی کاغذ جیب میں رکھتے ہی تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اسے جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ مل چکی تھی، اب بس وقت ضائع کیے بغیر بھاگنا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں دیر ہو جائے اور عنایہ ایک بار پھر اس کی پہنچ سے دور نکل جائے۔ عنایہ کمرے میں موجود تھی اور پورے دن اس سے کسی نے کوئی ملاقات نہیں کی تھی۔ بس وہی سیاہ فام عورت کھانا لاتی اور دروازہ بند کر کے چلی جاتی۔ رات کا وقت تھا اور عنایہ اب بھی بندھی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھولا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ بظاہر کسی ایجنسی کا اعلیٰ افسر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں سے ذہانت اور اعتماد صاف جھلک رہا تھا۔ کیسی ہو عنایہ؟ مجھے امید ہے کہ یہاں تمہیں کوئی خاص پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی۔ اوہ، یہ کیا؟ تمہیں تو باندھ رکھا ہے۔ کیسے بے ظرف لوگ ہیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو یوں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے اس کے ہاتھوں سے ٹیپ اتاری اور پھر پیر بھی آزاد کر دیے۔ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، ایسے لوگوں کو یوں باندھ کر نہیں رکھا جاتا۔ وہ مسکرا کر بولا تو عنایہ مزید الجھ گئی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، اب یہ کون بلا ہے اور مجھے اتنے اچھے سے کیسے جانتا ہے؟ وہ فوراً بول اٹھا، بری بات،
ऐसे नहीं सोचते। मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, चाहता हूँ कि तुम इस मुसीबत से आज़ाद हो जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हारा वो अल्फा 1 ज़रूर तुम्हें नुकसान पहुँचा कर ही दम लेगा। ये सुनकर इनाया के लब हैरत से खुले रह गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सामने खड़ा ये गोरा इतनी शानदार उर्दू बोल सकता है। शर्मिंदगी के मारे उसकी गर्दन झुक गई। आप कौन हैं और मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं? वो आखिरकार बोल ही उठी। मेरा नाम डैनियल है, डैनियल ब्राइट। मैं एक आलमी एजेंसी के लिए काम करता हूँ। छोटे मुल्कों में होने वाले खुफिया मिशंस मेरी निगरानी में होते हैं। सब कुछ कामयाबी से चल रहा था, लेकिन तुम्हारा वो अल्फा 1 मेरे रास्ते में आ खड़ा हुआ। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो था कि बाज ही नहीं आया। इसकी वजह से मुझे बार बार जिल्लत सहनी पड़ी, लेकिन अब तुम मेरे हाथ में हो और अब वक्त है कि मैं उसे दिखाऊं कि असल में ख्वार होना किसे कहते हैं। बात के आखिर में डैनियल का लहजा शफ़ाक और सर्द हो गया। चंद लम्हे पहले की मुस्कुराहट चेहरे से गायब थी और अब इसकी आंखों में एक खबीस रोशनी जल रही थी। इनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ये मुआमला है, लेकिन मेरा इस सब में क्या कसूर है? मैं तो बस अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, मुझे क्यों घसीट रहे हैं आप? इसके लहजे की सादगी सुनकर डैनियल दोबारा मुस्कुराया। यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है। वो तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम हो ही ऐसी कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके। निडर, बेबाक, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली। मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम हमारे जाल का सबसे अहम टुकड़ा हो। तुम्हारी वजह से अल्फा 1 खुद हमारे पास आएगा और फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इनाया ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह आप लोगों की मुश्किलें आसान करे। डैनियल का कहकहा गूंज उठा। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। याद रखो, आराम से रहोगी तो सुकून से रहोगी, वरना दोबारा तुम्हारे मुंह पर टेप लगाने में मुझे लम्हा नहीं लगेगा। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और सर्द नज़रों से इनाया को देखता हुआ कमरे से निकल गया। इनाया का दिल चाहा कि उसे खरी खरी सुना डाले, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थी। अच्छी तरह जानती थी कि ज़्यादा बोलने का मतलब ज़्यादा फंसना है। इसलिए उसने अपने जज्बात दबाए और खामोशी इख्तियार की। सुल्तान अपने फ्लैट में बैठा था और तैमूर से उसका राब्ता हो चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वो कुछ भी ना कर सका था। यही बात उसे मुसलसल परेशान कर रही थी और अब ये नई मुसीबत उसके गले पड़ चुकी थी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इनाया का मामला हम पर छोड़ दो। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो मुकम्मल हो चुका है। अब तुम्हें चाहिए कि फ़ौरन वहाँ से निकलने की तैयारी करो। फ्लाइट पकड़ो और अपनी मंजिल पर पहुँचो। बाकी सब हम संभाल लेंगे। तैमूर ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बज़िद था। मैं ऐसे इनाया को कैसे छोड़ दूँ यार? वो उन लोगों की कैद में है और अब तो मुझे ये भी पता चल चुका है कि उसे कहाँ रखा गया है। इसके लहजे में हठ धर्मी साफ झलक रही थी। तैमूर झुंझला गया, ओए अक्ल के अंधे, यही तो वो चाहते हैं कि तू उनकी जाल में आए और फंस जाए। वो मार्क और इस जैसे कई और एजेंट्स आपस में मिले हुए हैं। उसने तुझे पता दिया और तो फौरन भागने को तैयार हो गया। इस बार तैमूर के लहजे की शिद्दत ने इसे खामोश कर दिया। वो आहिस्तगी से बोला, मेरा उस पर एहसान है। उसने वादा किया था कि वक्त पड़ने पर वो मेरी मदद करेगा, और उसने की भी है दोस्त। इसमें आखिर ऐसी क्या बात है जो तुझे समझ नहीं आ रही? तैमूर ने गहरी सांस ली और बोला, तूने जो पूछा उसने बता दिया, लेकिन ये याद कर, किया उसकी बातों में कोई अनहोनी
कोई छुपा इशारा तो नहीं था। सुल्तान लम्हा भर को सोच में डूब गया, फिर धीरे से बोला, कुछ खास तो नहीं, लेकिन जब वो मुझे पता समझा रहा था कोड वर्ड्स में, उस वक्त उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं, जैसे वो मुझे किसी बात से रोक रहा हो। ये सुनते ही तैमूर बेसाख्ता हंस पड़ा। ठीक कहते हो, मोहब्बत इंसान को अंधा तो कर ही देती है, साथ ही सोचने और समझने की सलाहियत भी छीन लेती है। ओए अक्लमंद आदमी, उसने तुझे बताया कि इनाया को कहाँ रखा गया है, क्योंकि उसे ऐसा करने का हुक्म दिया गया था। साथ ही उसने तुझे खबरदार भी किया कि वहाँ मत जाना, क्योंकि ये एक जाल है और ये जाल खालिसतन तेरे लिए बिछाया गया है। अब मेरी बात मान, फौरन करीब तरीन फ्लाइट पकड़ और नॉर्वे जाने की तैयारी कर, क्योंकि जब वो लोग यहाँ मायूस हो जाएंगे तो इनाया को वो बहरहाल नॉर्वे ही मुंतकिल करेंगे। और तूने भी तो यही फैसला किया था ना कि तुझे वहीं जाना है जहाँ सारी डाक पहुँचती है। तो अब ऐसा किया बदल गया है कि तू अपनी ही कही हुई बात से फिर रहा है। जा शाबाश, और यहाँ का मैटर यहीं ख़त्म कर दे। इनाया तब तक महफूज रहेगी जब तक तू उनके हाथ नहीं लगता। अल्लाह कोई ना कोई सबब निकाल देगा, लेकिन अगर तू खुद को यूं उनकी झोली में डाल देगा तो नतीजे दो ही होंगे। एक, तू मारा जाएगा, दूसरा, वो इनाया को भी नहीं छोड़ेंगे। तैमूर के तफसीली अंदाज ने जैसे उसके दिमाग पर पड़ा हुआ धुंधला पर्दा हटा दिया। इसका दिल चाहा कि अपना ही सर पीट ले। वाकई इतनी सीधी सी बात को वो कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। ये सब जाल तो उसी के लिए बिछाया गया था। अगर वो जज्बात में आकर वहाँ चला जाता तो सिवाय बर्बादी और नुकसान के कुछ भी हाथ ना आता। वो आहिस्तगी से बोला, ठीक है दोस्त, मैं फ़्लाइट चेक करता हूँ और पहली ही फुर्सत में यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। दिल ही दिल में वो अपने इस जान से प्यारे दोस्त के लिए दुआ गो हुआ जिसने उसे सही समत में रहनुमाई दी, वरना वो तो अपने ही हाथों अपना अंजाम करीब कर बैठा था। अचानक इसे मार्क का दिया हुआ कागज़ याद आया। इसने जेब से वो पुर्जा निकाला और गौर से देखने लगा। जैसे ही नज़र पड़ी, इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये राइट टेक्स्ट दरअसल एक नक्शा था। डैनियल पूरी बिसात बिछा कर बैठा था। उसको यकीन था कि अल्फा 1 इनाया का पता चलने के बाद परिंदे की तरह उड़ता हुआ यहाँ पहुँचेगा। इसने अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी, मगर एक दिन गुजर गया और वो नहीं आया। ऐसा कैसे मुमकिन है? जितना मैं उसे जानता हूँ, वो पीछे रहने वालों में से नहीं है। डैनियल बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। तैयारी मुकम्मल थी और इस बार वो तय कर चुका था कि अल्फा 1 को जिंदा नहीं छोड़ेगा। साथ ही इनाया को भी ख़त्म करने का पूरा मंसूबा बना रखा था। उसी दौरान डेविड की कॉल आ गई। हाँ भाई बरखुरदार, कहाँ तक पहुँचे हो? डेविड के चहकते लहजे ने डैनियल की परेशानी बढ़ा दी। बस चीफ, इंतज़ार है। हमारे सोर्स ने पता उस तक पहुँचा दिया है। उसकी आमद किसी भी वक्त मुतवक्के है। डैनियल ने बात संभालते हुए कहा, देख लेना कहीं हमेशा की तरह वो तुम सबसे एक कदम आगे ना निकल जाए। डेविड तंजिया लहजे में बोला। कॉल बंद करते ही डैनियल झुंझला गया। बहुत जलील हो चुका हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में अल्फा 1। बहुत इबरतनाक अंजाम सोच रखा है तुम्हारे लिए। वो दांत पीसते हुए एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारा और फिर एक नंबर मिलाने लगा। हाँ, क्या सिचुएशन है? उस एजेंट ने बताया था ना कि बंदा कहाँ है? डैनियल तेजी से बोला। जवाब मिला, एजेंट ने काम मुकम्मल कर दिया है, डबल चेक भी कर लिया। उसने कोड वर्ड में उसे यही पता दिया था, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है। तसल्ली आमेज जवाब ने वक्ती सुकून दिया, मगर डैनियल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
कमरे में टहलते टहलते वो सोचने लगा। इनाया की खामोशी और उसकी बेखौफी उसके लिए मजीद उलझन का बायस थी। कुछ ना कुछ है जो मेरी आंखों से ओझल है या मैं देख नहीं पा रहा। फिर खबासत से मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है। अगर ये यहाँ ना आया तो मैं इनाया को लेकर नॉर्वे चला जाऊँगा। वहाँ उसकी मोहब्बत उससे छीन जाएगी और मैं उसे उसके अपने होम ग्राउंड पर मारूंगा, जहाँ वजीर भी मेरा होगा और प्यादा भी। ये कहकर वो इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुल्तान की किस्मत अच्छी थी कि उसे बराह रास्त फ्लाइट मिल गई। वो नॉर्वे के बर्गन एयरपोर्ट पर उतरा, क्लियरेंस करवाई और बाहर निकल आया। हुलिया अब भी वही था जिसे बदलने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की थी। शाम का वक्त था, सर्दी काफ़ी सख्त थी मगर उस पर कोई असर न डाल रही थी। वो तो वैसे भी सख्त जान था, लेकिन बाहर से आए हुए मुसाफिरों के लिए ये मौसम बर्दाश्त करना खासा दुश्वार था। इसका असल हदफ फोना ग्लेशियर्स की रिजॉर्ट के करीब का वो मकाम था जिसकी निशानदही मार्क ने की थी। ये जगह उस रेस्टोरेंट से तकरीबन 115 किलोमीटर आगे वाक़ थी। रास्ता करीबन 3 घंटे का था और दरमियान में एक फेरी के ज़रिए समंदर भी उबूर करना था। वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक कैब रोकी और किराया तय करके अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गया। जेब से वो नक्शा निकाला जो मार्क ने ख़ास तौर पर बनाया था और गौर से उसका जायज़ा लेने लगा। नक्शे के मुताबिक उसका रेस्टोरेंट से आगे कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। उसे सिर्फ निशानों को देखकर बढ़ना था जो नक्शे पर वाज़ेह दर्ज थी। बर्फ पोश पहाड़ों और जानलेवा घाटियों के दरमियान उसकी मंजिल छुपी हुई थी। वो सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। दिल ही दिल में खुद को पुरसुकून कर रहा था, क्योंकि जानता था कि आगे आने वाले लम्हात सख्त, कठिन और मेहनत तलब होने वाले हैं। अचानक ख्याल आया तो उसने दोबारा नक्शा निकाला, मोबाइल से उसकी तस्वीर लेकर महफूज की और दोबारा आंखें बंद कर दी। तकरीबन 2 घंटे बाद कैब उसे उस मकाम पर उतार गई जहां से फेरी रवाना होती थी, मगर रात हो चुकी थी और फेरी सर्विस बंद थी। उसने मुहिम जोई को कल तक मुअख्खर किया और करीबी छोटे रेस्टोरेंट में क़याम का फैसला कर लिया। किराया अदा करके एक सिंगल रूम लिया। कमरा छोटा मगर तमाम सहूलियात से मुज़य्यन था। सुल्तान ने खाना मंगवाया, खाकर फ़ौरन बिस्तर पर लेट गया। आगे आने वाला वक्त यकीनन बहुत कठिन था। जैसे ही लेटा, इनाया उसकी सोचों में उतर आई। वो जैसे उससे बातें कर रही थी, उसे छेड़ रही थी। इन्हीं ख्यालात में डूबा वो जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।